Okay. So good morning to all of you guys. So today we will going to discuss about biotechnology and its application. Up to the last session, we discussed about the processes of biotechnology, how to we develop product with the help of biotechnology. That thing we discussed in the last session. In today's session, we will going to discuss what is the basic and we can say important application of biotechnology and which is the different field where we use the biotechnology uh, and we use the knowledge of biotechnology for development of different type of uh, application systems and other things which important for the human welfare. ठीक है, so बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. So before going to start the session, we go through some technical check. Please answer me, and after that we will start the session. I'm launching poll for technical check. Please answer. Okay. Okay, guys. Okay. I think everything is clear from my side. So, guys, first thing we will going to discuss, that is the applications. So there have different applications in biotechnology. You can see on your screen there have a lot of, actually this is the very less, ठीक है, but biotechnology का अगर हम practically देखें, then it have a huge applications in human welfare. Okay, so this is the basic, and we can say this is the important applications or important applications in different field. Okay, so that field mentioned here in on your screen. ठीक है. And in today's lecture we go through some important things, कुछ important things है जो एग्जाम से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट है, ऐसी चीजें वही चीजें हम लेने वाले हैं. ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक बेसिक चीजें, वी जस्ट रिवाइज द थिंग. ओके, एंड गो टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट. ओके, so in this application you can see the in first application is the biopharmaceutical. Then what is mean by pharmaceutical? Pharmaceutical is the development of medicine, the process of development of medicine. That thing is known as the biopharmaceutical, sorry, pharmaceutical. Okay, and then what is meant by biopharmaceutical? So here we use a living organism, or we use the different derive, or we can say different product from the living organism as a pharmaceutical thing. That means for the development of medicine, that thing is known as the biopharmaceuticals. For example, antibiotics, for example, vaccines are the sum of biopharmaceutical product. Okay. Next is the therapeutics. Then what is meant by therapeutics? Therapeutics is the nothing but it is the we can say it is the process where um, different strategies are developed for the treatment, okay, of patient. ठीक है, मतलब patient का treatment कैसा किया जाए. ठीक है, that is the therapeutics. That means different therapies are used in this process. ठीक है, उसे हम ड्रग मैनेजमेंट और अदर थिंग्स भी कह सकते हैं. मतलब जो पेशेंट्स है उनको ड्रग कैसे देना चाहिए, और हाउ टू ट्रीट अ पेशेंट, दैट थिंग इज नोन एज द थेराप्यूटिक्स. And that therapeutics is also uh, come in the application of biotechnology, because we use a different classical method as a therapeutics, but in nowadays we use a different type of different methods as a therapeutics. Okay, for example, chemotherapy, radiation therapy are the different and new we can say therapies, ठीक है, जो यूज किया जाता है. Next thing is the diagnosis. Then what is meant by diagnosis? Diagnosis is the system where we discuss different chemical reactions which happen in our body. Okay, and that type of chemical reaction again
we generated or it happen in the lab. ठीक है? And by this different type of chemical reaction, we go one of the point and where we discuss the different solution, or we can say we discuss a different हम क्या कह सकते हैं उसको कि एक प्रॉपर हम एक पॉइंट पे आ जाते हैं जहां पर हम डिसीज को बता सकते हैं. ठीक है? वी डिस्कस अबाउट द डिसीज. ओके, दैट मीन्स किस तरीके से जो है एक स्पेसिफिक सैंपल को लेके फ्रॉम द पेशेंट बॉडी. ठीक है? वी डायग्नोज दिस. ओके, एंड दैट डायग्नोज अ सैंपल, उससे हम बता सकते हैं डिसीज. ठीक है? कि कौन सा डिसीज इस पर्सन के अंदर है. ठीक है? दैट थिंग इज द डायग्नोसिस. In case of diagnosis, there have different biochemical techniques. Okay, but what is the use of biotechnology in case of diagnosis? मतलब बायोकेमिस्ट्री का बहुत सारा यूज होता है डायग्नोसिस प्रोसेस के लिए. माइक्रोबायोलॉजी आल्सो यूज फॉर द डायग्नोसिस. ओके, देन व्हाट इज द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन केस ऑफ डायग्नोसिस? सो देयर हैव मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो है वो होता है. ठीक है? मॉलिक्यूलर लेवल डायग्नोसिस. And what is the molecular level diagnosis? Here we discuss about the DNA protein sample. Okay, so उसे हम कहेंगे, or we can say enzyme immunosorbent like ELISA test. Okay, so that thing is the applications of biotechnology. वो चीजें क्या रहेंगी? बायोटेक्नोलॉजी की applications रहेंगी. ठीक है? In case of diagnosis. नेक्स्ट थिंग इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और जीएमओ क्रॉप. ठीक है? जीएमओ क्रॉप का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. उसमें का ही अगर क्रॉप रहता है तो क्रॉप, एंड एनिमल रहता है तो एनिमल, इस तरीके से. सो इन टुडेज वर्ल्ड वी यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ वी कैन से फूड. ओके, फूड मटेरियल, and this food material is not enough. Okay, or we can say this food material is not a proper nutrient base. अगर ऐसी चीजें रहती है तो साइंटिस्ट डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. ठीक है? जो क्या होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में पैदा होगा, एज वेल एज इट हैव अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एबिलिटी. उसका कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट एबिलिटी हो, और इट वी कैन से टॉलरेट डिफरेंट ट्रेसेस. ठीक है? ये क्या करेगा? डिफरेंट ट्रेसेस को टॉलरेट करेगा. ठीक है? अब ट्रेसेस क्या होते हैं क्या नहीं, वो हम आगे चल के बात करेंगे सर. नेक्स्ट थिंग इज द प्रोसेस फूड. सो यू ऑलरेडी नो we consume lot of processed food like cold drinks and chips. Okay, like potato chips and other thing. Okay, that thing is the processed food. Okay, so biotechnology have a huge application in case of processed food. Processed food में भी उसका बहुत ज्यादा application है. Next thing is the bioremediation. Then what is meant by bioremediation, guys? So there have some ability of living organism. For example, some ability of plants. Okay, and that plant we can say consume the pollutant from the soil. मतलब कुछ प्लांट के अंदर एक ऐसा एबिलिटी रहता है जहां पर क्या करता है, वो प्लांट क्या करेगा, जो सॉइल के अंदर जो फैले हुए पोल्यूटेंट रहेंगे उसको कंज्यूम कर देगा. एंड दैट थिंग इज नोन एज द बायोरीमेडिएशन. उसे हम कहते हैं बायोरीमेडिएशन. और वी कैन से सम ऑफ algae, some of other living organism who dissolve the pollutant. जो क्या करते हैं, पोल्यूटेंट को डिसॉल्व करते हैं. ठीक है? उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिएंट मटेरियल, एंड उसी वजह से पोल्यूटेंट जो है गेट लॉस्ट फ्रॉम दैट एटमॉस्फेयर और फ्रॉम दैट सराउंडिंग. दैट थिंग इज नोन एज द बायोरीमेडिएशन. ठीक है? मतलब इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम बायोरीमेडिएशन कहेंगे. Next is the waste management. So again, biotechnology have a huge application in case of waste management. Waste management or waste treatment, whatever you say. Waste treatment in the sense जैसे जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है. ठीक है? इस तरीके से, और अदर चीजें जो है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ पर वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए. अगेन यहाँ पर स्ट्रेन डेवलपमेंट भी किया जाता है. फॉर एग्जांपल सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से बैक्टीरिया. ठीक है? सो बैक्टीरिया का स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट किया जाएगा. ठीक है? विच बैक्टीरिया इज अ वेरी यूजफुल टू ट्रीट वेस्ट. ठीक है? जो वेस्ट के को ट्रीट करने के लिए किया जाएगा. सो दैट इज द सम ऑफ biotechnical application. Next is the energy production. So energy, in case of energy production, there are huge application again.
like some of petrochemical plants, ठीक है, like जेट्रोफा जैसे कुछ प्लांट रहते जो पेट्रोकेमिकल रहते, as well as lot of other things which included in the energy production, ठीक है. So this is the eight we can say different types of application of biotechnology. Actually this part is a very huge, अगर हम इस पर बोलते बैठेंगे तो पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा. Different type of applications, which drugs are formulated with the help of biotechnology and other thing, how diagnosis happen, how therapeutics happen, ठीक है. तो ये हम सारा डिस्कस नहीं करेंगे अभी, हमें थोड़ा सा रिवाइज करना है ये चीजें बस, ठीक है. जस्ट यू वांट टू नो अबाउट देयर कोर कॉन्सेप्ट, ओके, देन हम आगे चलेंगे, ठीक है. चलिए, so here is the three critical areas of biotechnology, that means where biotechnology help in research, ठीक है, मतलब कहाँ पर ये रिसर्च में हेल्प करता है. So it provide the best catalyst in the form of improved organism, usually microbe or pure enzyme, ठीक है. So it provide, that means it is the one of we can say aim of biotechnology. ये aim बोल सकते हैं हम biotechnology के, ठीक है. क्या करना है, टू प्रोवाइड द बेस्ट कैटलिस्ट इन फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म, कौन से किसके फॉर्म में, देन व्हाई इट इज नोन, व्हाई इट इज कॉल्ड द बेस्ट कैटलिस्ट, बिकॉज व्हाट इज द कैटलिस्ट, एक्चुअली कैटलिस्ट इज द स्पीड अप द रिएक्शन, ठीक है, विदाउट टेकिंग पार्ट इन दैट रिएक्शन, दैट थिंग इज नोन एज द कैटलिस्ट. देन व्हाई इट इज नोन एज, व्हाई इट इज कॉल्ड द बेस्ट कैटलिस्ट, मतलब हम बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प करके क्या करेंगे, वी रिसर्च, ओके, and we provide the best catalyst in form of improved organism. Then what is the improved organism here? That is the RDT organism, or we can say we use a genetically modified technique, or genetically we can say recombinant DNA technology, and improve the organism. So what is recombinant DNA technology? We will we already discussed in the last session, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा है. तो हम क्या करेंगे, we develop a such a organism which is the improved form, okay, and they use for development of enzymes and other things, मतलब other chemical का जो है development हम उस organism के मदद से कर सकेंगे. So this is the first we can say research area of biotechnology where research is going on, and it going on in future also, ठीक है. Next thing is the create optimal condition through engineering for the catalyst to act. So this thing also important, where in first case we develop the catalyst in the sense, is it some chemical, is it some we can say bacteria and other organism, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. So this is the catalyst in case of biotechnology, ठीक है. So catalyst का मतलब chemical substance ही है, ऐसा नहीं मत पकड़िए यहाँ पर, ठीक है. Catalyst का मतलब where it is the microbe, okay, और वो कुछ केमिकल भी हो सकता है, like that. So for that catalyst it is the second case. इस केस में हम क्या करेंगे, we develop the optimal condition, okay, and this condition through the engineering, okay, मतलब हम क्या करेंगे, we doing a genetic engineering, okay, and by the genetic engineering we develop some of condition, and that condition is a very helpful to act that कैटलिस्ट जो हमने पहले केस में डेवलप किया था, इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया था, वो जो है अगले फेज में क्या करेगा, एक प्रॉपर कंडीशन के अंडर में एक्ट करेगा. नेक्स्ट थिंग इज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. सो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. देन व्हाट इज मीन बाय डाउनस्ट्रीम? डाउनस्ट्रीम प्रोसेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ओके, वी प्यूरिफाई द सैंपल और वी प्यूरिफाई द प्रोडक्ट, ठीक है, उसको हम प्यूरिफाई करेंगे. We assure their quality, okay, that thing is known as the downstream processing, ठीक है, जिसमें हम प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, सिंपली वी प्यूरिफाई these things, okay, up to the marketing, ठीक है. So this is the sum of applications or we can say research area of biotechnology. मतलब इसमें जो है वो रिसर्च चलता है या चल रहा है. And I am again saying biotechnology is the future technology, or we can say biotechnology is the future biology, ये future biology, okay. And where we discuss about engineering and other thing, उसमें तो improvement जरूरी है ही, but we want to improvement in biology also, because आज क्या कंडीशन हो गया कि जो है हमारा अर्थ है, ठीक है,
अर्थ के ऊपर में बहुत सारा टेम्परेचर चेंज है, और वी कैन से क्लाइमेट चेंज हैपन, और वी कैन से द पॉपुलेशन गेट इंक्रीजेस, and we have a limited resources, and that's why we want to doing a work in a short resource, okay, as well as it want to proper quality, मतलब उसमें क्वालिटी भी होना चाहिए और कम से कम जो है हमारी रिसोर्स के अंदर चीजें होनी चाहिए, एंड वी वांट टू इट लिटिल बिट स्पीडी और फास्ट, और ये चीजें हमें फास्ट भी चाहिए। सो बायोटेक्नोलॉजी इज अ बेस्ट ऑप्शन, और वी कैन से बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्चेस आर द बेस्ट फॉर दैट प्रोसेस। ठीक है, तो उसके लिए हमारा बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोसेस रहेगा। चलिए, कमिंग टू दी नेक्स्ट, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर को देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक, यू कैन आस्क मी। ठीक है, इफ इट क्लियर क्लिक ऑन यस। ओके, चलिए। So next thing is the application in agriculture, guys. So there have three type of basic agricultural system. First is agrochemical based agriculture. Next is the organic agriculture. Next is the genetically engineered or crop based agriculture. Then what is mean by agrochemical based agriculture? Agrochemical based agriculture का मतलब क्या होता है? Okay. So green revolution happened in India, and after that this agrochemical based agriculture are developed. The strategies for agrochemical based agriculture is developed in India. Okay. Then what is mean by agrochemical based? Agrochemical, chemical means chemical. Okay. So we use a chemical for development of crops in an agricultural land. That thing is known as the agrochemical based agriculture. Okay. But it have some advantage, and again it have some disadvantage. Then what is the advantage? So advantage इसमें ये था agrochemical based agriculture का, कि यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ फूड जो है वो हाई होता था, हाई रहता है। ओके, बट इसका डिसएडवांटेज ये रहेगा। अब हाई क्यों रहेगा उसका भी रीजन है, बिकॉज वी यूज अ डिफरेंट पेस्टिसाइड, वी यूज अ डिफरेंट फर्टिलाइजर, एंड दैट्स व्हाई the production of crop is a high in case of agrochemical based agriculture. But it has some disadvantage again, because due to high use of pesticide there are lot of disease जो है वो क्रिएट होने लगे ह्यूमन बींग्स के अंदर। सो दिस इज सम ऑफ डिसएडवांटेज। और भी डिसएडवांटेजेस इसके है, एनवायरमेंटल इफेक्ट एंड अदर थिंग। ठीक है, चलिए उसको नहीं देखेंगे अब। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। देन व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वेयर वी यूज सम नेचुरल थिंग्स, दैट मीन्स वी यूज अ मैनर at the place of fertilizer, that is green manure वगैरह। we use a waste material as a manure। okay, we use a we can say desi seeds, desi seed in the sense a seed which is the uh, generally often used। ठीक है, फ्रॉम ओल्ड टाइम। ठीक है, मतलब ऐसे सीड जो हमारे जो है इंडिया के अंदर पहले से यूज आते होते रहे। That thing is the organic agriculture. And some people believe organic thing or organic crop are healthier than the agrochemical based agriculture। मतलब organic चीजें जो रहती है वो healthy रहती है as compared to agrochemical based agriculture की। ठीक है, सो इसके वजह से दिस इज वन ऑफ थिंग। बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इसका भी डिसएडवांटेज रहेंगे। हम इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में द डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्ट्स नॉट हैपन, मैक्सिमम क्रॉप नॉट हैपन बाय द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। एंड नेक्स्ट थिंग इज द जेनेटिकली इंजीनियरिंग crop based agriculture। Actually, in India, we just use genetically engineering BT cotton, that cotton plants. Okay, so यही चीज जो है जनरली हम यूज करते हैं इंडिया के अंदर। अदर थिंग्स जो है वो कम से कम है। ठीक है, दैट मीन्स वी डोंट यूज और वी हेजिटेट टू यूज जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई genetically engineered crop based agriculture is the future agriculture। ठीक है, ये हम इसको बोलेंगे फ्यूचर एग्रीकल्चर।
अब इसको फ्यूचर एग्रीकल्चर क्यों कहते हैं? सिंपल सी बात है, आज के कंडीशन में वी हैव अ लॉट ऑफ मिस कॉन्सेप्शंस अबाउट दी वी कैन से जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हमारे मन में बहुत सारे जो है गलत चीजें हैं, एंड दैट्स व्हाई इन फ्यूचर आई थिंक वी कन्विंस फॉर दैट जीएमओ। ठीक है, हम इसके लिए कन्विंस हो सकते आफ्टर लॉट ऑफ स्टडी हैपन, एंड आफ्टर दैट वी गेट कन्विंस, उसके बाद हम कन्विंस हो सकते। एंड दिस इज द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर, और यही क्या है, फ्यूचर है एग्रीकल्चर का। बिकॉज एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर इज अ वेरी डेंजरस। ठीक है, ये तो पता ही होगा। जैसे पंजाब के केस में जब पंजाब से एक ट्रेन आता था, बिकॉज ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम द पंजाब, दैट्स व्हाई। एंड पंजाब में सबसे ज्यादा केमिकल्स का यूज हुआ है पंजाब स्टेट के अंदर। ठीक है, सो पंजाब से एक ट्रेन निकलता था, एंड दैट ट्रेन लोगों ने नाम रख दिया था कैंसर एक्सप्रेस। व्हाई इट कॉल्ड कैंसर एक्सप्रेस? बिकॉज मैक्सिमम पीपल जो उस ट्रेन से आते थे, ठीक है, वो कैंसर के पेशेंट रहते थे, एंड वो बाहर जो है वो इलाज के लिए जाते थे। दैट्स व्हाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीजें रहती, मतलब एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर भी सही है ऐसा नहीं होता, नहीं। ठीक है, क्योंकि आजकल तो है हमारे लाइफ में, ये तो सारी चीजें हम देख ही रहे हैं जो एग्रीकल्चर, जो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है उसके वजह से तैयार हुई। ठीक है, चलिए। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म हु डेवलप बाय द आरडीटी, ठीक है, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, and that organism is known as the GMO, or genetically modified organism, where we alter the gene, or we can say we add some new genes। मतलब हम क्या करेंगे, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर को अल्टर करेंगे या नए जीन को हम वहां पर ऐड करेंगे। ठीक है, अब in case of genetically modified organism, which organism is come, that is a plant, bacteria, fungi, animal, all the things जो है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये पूरा आ सकता है हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, दैट मीन्स वी डूइंग अ रिसर्च ऑन दैट एंड डेवलप अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को वहां पर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ जीन, ओके, दैट इज अ जीएमओ। ठीक है, जीएमओ के अंदर हम क्या करते हैं, जीन का मैनिपुलेशन करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, कमिंग टू दी नेक्स्ट। अब पॉइंट पे आते हैं सीधा सीधा। पॉइंट है एडवांटेजेस क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और क्रॉप के। सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। अब यहाँ पर है ना, इट मस्ट हैव, और इट मेक क्रॉप मोर टॉलरेंट। ठीक है, मतलब ये क्या करेंगे, क्रॉप को टॉलरेंट बनाएंगे। दैट मीन्स इट टॉलरेट द डिफरेंट ट्रेसेस। ठीक है, वो ट्रेसेस को टॉलरेट कर सकते हैं। इट गेट पेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद इट रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। देन व्हाट इज मीन बाय पोस्ट हार्वेस्ट? आफ्टर हार्वेस्टिंग, ओके, आफ्टर हार्वेस्टिंग, ठीक है, इट गोइंग टूवर्ड द कस्टमर। ठीक है, मतलब क्रॉप का हार्वेस्ट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद वो कस्टमर के पास जाता है। बिफोर दैट सम लॉसेस हैपन। ठीक है, उसके पहले कुछ लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो उस लॉस को कम करना, हाउ? बायोटेक्नोलॉजी हेल्प to reduce post harvest losses, or how GMO help or GMO plants help, ठीक है, to reduce post harvest losses। ये हम इसके लिए एक टॉपिक है हमारे पास, we will discuss in that। ठीक है, वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे सारी चीजें, कैसे हम लॉस को जो है रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय द प्लांट। ठीक है, मिनरल का यूज जो है उसका इफिशियंसी बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट द इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, दैट मीन्स आई थिंक यू नो अबाउट दी गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के बारे में हमें पता होगा, दैट इज विटामिन ए एनरिच राइस। दैट इज नोन एज द गोल्डन राइस, वेयर वी इंक्रीज द विटामिन ए इन द राइस। मतलब राइस के अंदर का हम क्या करते हैं, विटामिन ए को जो है वो बढ़ाते हैं वहां पर। ठीक है, GM is used to create a tailor-made plant to supply alternative resources. So this thing also we going to discuss. That means what is mean by tailor-made plant? Tailor-made plant का मतलब होता है ऐसे plant की जिसके अंदर अपने आप ही, ठीक है, that means if we have any type of disease, we take a medicine, okay, ठीक है, but a GMO have a power, or GMO have a strength to develop such a type of plant
which contain a different we can say medicinal we can say medicinal things, ठीक है, उसके अंदर ही रहेगी प्लांट के अंदर। ओके एंड उसका अगर हम फ्रूट को कंज्यूम करते हैं और वी कंज्यूम द ग्रेन्स फ्रॉम दैट प्लांट, उसका जो है डिसीज का जो इलाज है अपने आप हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर। ओके सो दैट इज अ लिटिल बिट वी कैन से एक तरह का ये इमेजिनेशन है स्टिल, ठीक है, बट सम प्लांट्स आर डेवलप, इस तरीके से कुछ प्लांट का डेवलपमेंट भी किया गया है। वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, सो डोंट वरी, ठीक है। और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी डेवलप अ न्यू फ्यूल, ठीक है, कुछ नया फ्यूल को डेवलपमेंट हम कर सकते हैं या इंडस्ट्री में उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारा चीज दैट इज अ जीएम, दैट मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, विच इज अ वेरी हेल्पफुल टू डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेस, ठीक है, जो रिसोर्सेस के डेवलपमेंट के लिए काम में आएंगे, ठीक है, एंड दिस इज द वन ऑफ एप्लीकेशन। चलिए coming to the next guys, first thing we will going to discuss, that's the pest resistant plant. And in case of pest resistant plant in India, so there are first name is the BT cotton, ठीक है, BT cotton जो है all over the India उसको use किया जाता है, but BT cotton is not only product from development from this we can say BT से जो develop किया हुआ एक ही product नहीं है। There have BT corn, BT rice, tomato, potato, soybean, all these things scientists develop, ठीक है, but in India Indian government permit for only BT cotton, ठीक है, Indian government ने सिर्फ BT cotton को ही permit किया है। अगेन BT ब्रिंजल जो है उसका भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सो ये हमें देखना है क्या होता है BT कॉटन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो गाइज वी विल want to know about some basic thing. For example, so in 1993 में सबसे पहले बीटी को खोजा गया, ठीक है, और डिस्कवर द जीन ऑफ बीटी, ठीक है, जो बीटी का जीन है, ठीक है, उसको खोजा गया, ठीक है, एंड इट डेवलप और इट डिस्कवर in one city of Germany, and that city is known as the Thuringia, ठीक है, ये थुरिंजिया जो है दैट इज द सिटी ऑफ जर्मनी, ठीक है, ये जर्मनी का सिटी है यहाँ पर। ओके वहां पर इन 1993 इसको जो है वो ढूंढा गया, ठीक है, एंड साइंटिस्ट discover one of bacteria, and that the bacteria is known as the Bacillus thuringiensis, ठीक है, Bacillus thuringiensis नाम का यहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो ढूंढा जाता है, ठीक है। In India, or we can say in India there have one company that is a Mahiko company first introduced we can say the BT इन इंडिया, ठीक है, यहाँ पर माहिको जो कंपनी है वह उसने क्या किया, सबसे पहले इंडिया के अंदर बीटी को इंट्रोड्यूस किया। कंपनी का मैं नाम लिखता हूँ मोनसैटो एंड माहिको, ठीक है, ठीक है, इन 2005 इंट्रोड्यूस बीटी टू इंडिया, ठीक है, सॉरी नॉट 2005, 2002, ठीक है, 2002 में इंडिया के अंदर इसका इंट्रोडक्शन हुआ। आफ्टर दैट देयर हैव अप टू 200 बीटी टॉक्सिन्स, ठीक है, डिफरेंट बीटी टॉक्सिन्स, ठीक है, ओके, एंड देयर हैव सम बीटी टॉक्सिन्स और बीटी जीन्स आर यूजफुल, ठीक है, आर यूजफुल टू डेवलप द रिकॉम्बिनेंट कॉटन प्लांट, ठीक है, मतलब कुछ बीटी जो बीटी रहेगा, ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएनेसिस का जो जीन रहेगा उसका डेवलपमेंट सॉरी उसका यूज जो है वो बीटी कॉटन के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ पेस्ट है, ठीक है, अब हमारा जो क्रॉप रहेगा दैट इज दिस इज द क्रॉप ऑफ कॉटन, एंड क्रॉप ऑफ कॉटन के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, हम जो है
बीटी का इस्तेमाल करेंगे उसको पेस्ट रेजिस्टेंट करवाने के लिए, ठीक है। सो हियर यू कैन सी सम ऑफ पेस्ट दैट इज कोलेप्टेरॉन, ठीक है। कोलेप्टेरॉन इज नोन एज द बीटल इन कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, इसे कहते हैं हम बीटल्स इन कॉमन लैंग्वेज। नेक्स्ट इज द लेपिडोप्टेरॉन, लेपिडोप्टेरॉन, ठीक है। इट इज नोन एज टोबैको बर्ड वॉर्म। नेक्स्ट इज द डायप्टेरॉन, okay guys, so this is a some type of pest, okay, and this attacked on the cotton plant, ठीक है, मतलब ये पेस्ट क्या करता है, कॉटन प्लांट पर अटैक करता है, एंड दैट्स व्हाई देयर हैव लॉट ऑफ लॉस जो है वो झेलना पड़ता है टू द फार्मर, एंड दैट्स व्हाई Monsanto and Myco develop some we can say टेक्नोलॉजी, ओके, इन्होंने टेक्नोलॉजी जो है इंट्रोड्यूस किया है इंडिया के अंदर, ठीक है, एंड उसे हम कहते हैं बीटी टेक्नोलॉजी, ठीक है, विच यूजेस इन द कॉटन प्लांट, जो कॉटन प्लांट के अंदर हमने यूज किया। अब बीटी टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ से है ना इंपॉर्टेंट चीज चालू होती है, ठीक है, हाउ बीटी कॉटन डेवलप, ठीक है, बीटी कॉटन को कैसे डेवलप किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर this Bt gene are isolated from the one of a bacteria, and the bacteria name is Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis नाम का बैक्टीरिया है, उससे हमने क्या किया है, we isolate one gene and that gene is known as the Bt gene, okay. This Bt gene is also known as the cry gene. Why it called cry gene? बिकॉज इट कंटेन दी क्राय प्रोटीन, ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, क्राय प्रोटीन। दैट मीन्स when this cry gene going to replicate, going to translate, transcript, okay, and after develop cry protein, तब ये क्या करेगा, क्राय प्रोटीन को डेवलप करेगा, okay. So here you can see whenever we write about the gene, then you can write the capital letter here. मतलब अगर हम identify करें, अगर simply कराय अगर लिखा हो तो which is the gene and which is the protein. Okay, so gene is a write, the name of gene is a write in a capital letter, name of protein write in the small letter. ये बात ध्यान में रख. Okay, अब क्या करता है, सिंपल सी बात है, this cry protein is produced by the cryogene. मतलब स्टोरी क्या है यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट isolate the cryogene, okay, from the we can say Bacillus thuringiensis, and that's why it is the BT cotton, और इसी वजह से हम इसको बोलते हैं BT cotton. BT means Bacillus thuringiensis, okay, and that cryogene introduced in the cotton plant, ठीक है, ये cryogene किसको इंट्रोड्यूस किया, कॉटन प्लांट को, okay, and what is the ability of cryogene help to develop क्राय प्रोटीन, ठीक है। अब क्रायोजीन क्या करेगा, क्राय प्रोटीन को जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर होता क्या है, we already we can say insert or we already create a RDT plant, and that is a cotton plant which possess the we can say cryogene, जिसके पास क्या है, क्रायोजीन है। देन क्या होता है, वहां पर जो हमारा पेस्ट है, ठीक है, और वी कैन से सम ऑफ वी कैन से बोलवर्म, ठीक है, बोलवर्म का ही एग्जांपल पकड़ देते हैं। बोलवर्म मतलब यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द फ्रूट ऑफ कॉटन, ये फ्रूट रहेगा कॉटन का, एंड यू कैन सी द दिस इज नोन एज द बोल, इसे कहा जाता है बोल, ओके, दिस इज द फ्रूट ऑफ कॉटन, ठीक है, एंड दिस वर्म इज नोन एज द बोलवर्म, और इसे हम कहते हैं बोलवर्म। अब होता क्या है, जो बोलवर्म है, ठीक है, बोलवर्म कंज्यूम द प्लांट, कंज्यूम द लीफ ऑफ प्लांट, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दिस क्रायोजीन सॉरी दिस क्राय प्रोटीन कमिंग कांटेक्ट विथ अल्कलाइन गट, ठीक है,
ये जो है लार्वा का जो अल्कलाइन गट है उसके कांटेक्ट में ये आ जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लार्वा गट। ठीक है, सो लार्वा गट हैव अ अल्कलाइन। ठीक है, लार्वा का गट कैसा रहेगा, अल्कलाइन रहेगा। ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस क्राई प्रोटीन गेट एक्टिवेटेड। और क्राई प्रोटीन क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है, एंड इट रप्चर द वी कैन से वॉल ऑफ गट। ठीक है, सॉरी, इट रप्चर द सेल ऑफ गट्स। ठीक है, जो गट के अंदर के सेल है इसको ये क्या कर देता है, रप्चर करना यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड इसके वजह से जो हमारा वार्म है, ठीक है, और लार्वा है, ठीक है, दे गेट डाई, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मर जाए। ठीक है, अब यहाँ पर यू कैन सी white cry protein again because it is a look like a crystal। ठीक है, ये क्रिस्टल के जैसे दिखता है और इसके वजह से हम इसको क्राई प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, सो दिस इज अ बैसिलस थोरेंजिनेसिस। ठीक है, यहाँ से इसको आइसोलेट किया गया। ठीक है, उसके बाद इट ऐड इन द बीटिकॉन ऑन बीटी कॉटन। फिर ये क्या करेंगे, इसको इंजेस्ट करेंगे, खा लेगा इसको। ठीक है, ये सोल्यूबलाइज होगा, यहाँ पर एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद यू कैन सी, ठीक है, इट बाइंड टू रिसेप्टर एंड यहाँ पर इंसेक्ट मिडगट सेल दिख रहा है हमें। ठीक है, मिडगट का जो है वो सेल। ठीक है, एंड यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर सेल डेथ पाथवे को स्टार्ट करता है। सेल डेथ पाथवे मतलब प्रोसेस ऑफ डेथ ऑफ सेल। ठीक है, सेल को मारने का प्रोसेस। सेल को मारने का प्रोसेस सिंपल है। ठीक है, या यहाँ पर क्या कर लेगा, ये रप्चर ऑफ सेल कर देगा। जो हमारा मिडगट है, हमारा इन द सेंस जो हमारा लार्वा है उसके मिड गट में ये क्या कर देता है, रप्चर करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है किसका, हमारे बीटी कॉटन का। बीटी कॉटन जो है वो इस तरीके से काम करता है। ओके, सो देयर हैव डिफरेंट जीन फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और उसके लिए अलग अलग जीन है, जैसे क्राई 1 AC। ठीक है, एंड ये कैपिटल में होना चाहिए, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। ठीक है, इट इज वेरी यूजफुल अगेंस्ट कॉटन बोलवर्म। ठीक है, ये कॉटन बोलवर्म के अगेंस्ट जो है बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट है क्राई 1AB is a very useful against corn borer। कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर का मतलब क्या होगा, कॉर्न प्लांट को जो है बोर करने वाला। ठीक है, तो ऐसा जो रहेगा वो उसके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट guys, next is the question is Bacillus thuringiensis strain have been used for designing novel biofertilizer। इसका तो सिंपल ही है, दैट इज अ बायोइंसेक्टिसाइडल प्लांट। ओके, आगे चलते हैं। Bt toxin kill the larva of certain insect by binding activated toxin on midgut epithelial cell, creating pore leading to swelling and lice. By stopping transcription of larva cell, by altering central dogma of taking place in the cell of gut of larva, by stopping protein synthesis. I'm launching poll for it, guys. Please answer. Correct, Shital. Correct, Snehal. Correct, Sonali. Correct, Dikteshwari. Correct, Silver Mary. Correct, Michi.
Okay, so I am ending this poll. This is your result. Maximum people choose an option A. Obviously, it is correct option. अभी अभी देखा है हमने. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि वो रप्चर करता है, इट गेट लाइज टू सेल. ठीक है, सेल को क्या करेंगे यहाँ पर जो है खत्म कर देगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो चीज है दैट इज द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के केस में, दैट इज नेमाटोड रेजिस्टेंट इन टोबैको प्लांट. ठीक है, देन व्हाट इज मीन बाय नेमाटोड? सो हियर पैरासाइटिक राउंड वर्म. ठीक है, इट इज नोन एज द नेमाटोड. ठीक है, यहाँ पर एक पैरासाइटिक राउंड वर्म रहेगा. ठीक है, वो क्या है? नेमाटोड है. एंड द नेम ऑफ नेमाटोड इज द मेलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया. ठीक है, इनकॉग्निटा, सॉरी, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा. ठीक है, तो ये एक नेमाटोड है. ठीक है, तो इसको जो है हमें क्या करना है यहाँ पर खत्म करना. ठीक है, देन हाउ टू किल दिस नेमाटोड? सो देयर हैव वन प्रोसेस and we will going to discuss about that process. Okay, so first of all, what what is doing? ठीक है, this nematode ये क्या करता है एक्चुअली? सो इट इन्फेक्ट टू टोबैको रूट. ठीक है, ये क्या करेगा? ये टोबैको रूट को इन्फेक्ट करेगा. ओके, एंड दैट्स व्हाई द क्रॉप ऑफ टोबैको प्लांट्स गेट डाउन. और इसके वजह से टोबैको प्लांट का क्रॉप जो है वो जो है वहां पर अच्छी तरीके से काम नहीं करता है. ठीक है, अब यहाँ पर we use the one technology and the technology name is RNA interference technology. RNA interference technology. Okay, then what is mean by RNA interference technology? Okay, so it also known as next name, and that name is a जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, आइदर इट आस्क अबाउट आरएनए इंटरफेस और जीन साइलेंसिंग. ठीक है, इसे हम जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं. एक्चुअली जीन साइलेंसिंग प्रोसेस इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग देन बीटी कॉटन. बीटी कॉटन से भी ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, वेयर वी यूज सम ऑफ मॉडिफाइड आरएनए मॉलिक्यूल. ठीक है, टू साइलेंट जीन. ठीक है, देन व्हाट इज मीन बाय जीन साइलेंसिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जीन साइलेंसिंग का मतलब क्या होता है? सो जीन साइलेंसिंग इज द प्रोसेस व्हिच यूज टू साइलेंट जीन. ठीक है, अब साइलेंट जीन का मतलब क्या होता है? हम क्या करेंगे? वी गोइंग टू लॉस द जीन. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट नॉट एक्सप्रेस. और वो क्या होता है? आगे चल के एक्सप्रेस नहीं होता है. दैट थिंग इज नोन एज द जीन साइलेंसिंग. तो इसे हम क्या कहते हैं? जीन साइलेंसिंग. ठीक है, कौन सा टूल यूज कर रहे हैं? दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी. ओके, एंड इट डेवलप बाय द टू साइंटिस्ट. इसको है ना सबसे पहले दो साइंटिस्ट लोगों ने डेवलप किया, एंड नेम ऑफ साइंटिस्ट इज द एंड्रयू हायर and क्रेग सी मेलो. ठीक है, क्रेग सी मेलो. ठीक है, सो इन्होंने सबसे पहले इसको क्या किया? डेवलप किया. एंड there was got a Nobel Prize in 2006 for this discovery, or we can say for this invention, whatever you say. इसके लिए इनको मिला एक नोबेल प्राइज. ठीक है, कब? 2006 में. सो दिस इज द सम ऑफ बैकग्राउंड अबाउट पेस्ट रेजिस्टेंट, वी कैन से नेमाटोड रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट. ठीक है, नेमाटोड रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट का ये हो गया थोड़ा सा प्रोसेस. अब आते हैं मेन मुद्दे पे. सो हियर वन ऑफ नेम वी ऑलरेडी राइट, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी. ठीक है, so before we going to discuss about RNA interference technology, RNA interference technology को देखने से पहले हम है ना, we discuss about different form of RNA. ठीक है, which use in the RNA interference technology, मतलब जो RNA interference technology में यूज किया जाता है, ऐसे अलग अलग RNA को पहले देख. So here I am write the first name, that is a micro RNA. ठीक है,
पहला नाम यहाँ पर मैं लिखता हूं, ठीक है, क्या है, माइक्रो आरएनए। ओके, नेक्स्ट थिंग is the small interfering RNA. Small interfering RNA and it also known as siRNA, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, siRNA. Third thing is known as the shRNA. ठीक है, and what is meant by shRNA guys? It is the short hairpin RNA. Okay, so this is a different form, okay, which can use in the gene silencing or which can use in the interference technique. ठीक है, जो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है गाइस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आरडीटी वी डेवलप अ जीन। ठीक है, हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आरडीटी का यूज करेंगे, ठीक है, दैट इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ठीक है, एंड वी डेवलप अ जीन। यहाँ पर हम एक जीन का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आरडीटी, एक ऐसे जीन का हम डेवलपमेंट कर देंगे। देन दिस जीन एनकॉर्पोरेट इन द प्लांट डीएनए। ठीक है, ये जीन को हम एनकॉर्पोरेट करेंगे प्लांट डीएनए के अंदर, दैट इज अ टोबैको प्लांट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोबैको प्लांट। ठीक है, टोबैको प्लांट के साथ में इसको क्या कर देते हैं, हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, टोबैको का स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ, ठीक है, आई थिंक अब करेक्ट है। अब टोबैको प्लांट का जो सेल रहेगा उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ वी इंसर्ट दिस न्यू जीन। ओके, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और फंक्शन ऑफ न्यू जीन, इसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हमने इंसर्ट कर दिया, देन दिस जीन डेवलप डीएस आरएनए, मतलब वो स्पेसिफिक जीन क्या करेगा, इट डेवलप डीएस आरएनए। देन व्हाट इज मीन बाय डीएस आरएनए, यू कैन सी हियर डीएस आरएनए। ओके, सो डीएस आरएनए इट हैव अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, मतलब एक तरह का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रहेगा। Then also we included or also we add the gene for the dicer protein, और उसी तरीके से हम एक और जीन जो है वो ऐड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ आरडीटी एंड इट डेवलप अ डाइसर प्रोटीन, और वो क्या करता है, डाइसर प्रोटीन का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइसर प्रोटीन गाइस, सो दिस डाइसर प्रोटीन एक्ट ऑन द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, डाइसर प्रोटीन किसके ऊपर एक्ट करेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के ऊपर यहाँ पर, and that's why it cleave the RNA, और उसी वजह से जो RNA है यहाँ पर क्लीव होता है, and here you can see the siRNAs and it develop siRNA, मतलब यहाँ पर डाइसर प्रोटीन क्या करता है, इसको क्लीव करेगा and it develops into the siRNA, यहाँ पर ये बन गए siRNA। ठीक है, अब ये siRNA बन गए। So this thing, up to this thing happen in the tobacco plant cell. Tobacco plant cell के अंदर ये सारी चीजें हो रही है। So here you can see next cell. Next cell is the nematode cell. ठीक है, और nematode body, ये क्या है, nematode body है यहाँ पर। अब nematode body में क्या होता है, चलिए आगे चलते हैं। So here siRNA developed by this process in the tobacco plant. Then here you can see this is the we can say there have some organ which inserted in the plant। ठीक है, यहाँ पर प्लांट में इसको ऑर्गन को, कुछ ऑर्गन जो है नेमाटोड का उसने उसको इंसर्ट किया, लाइक अ टीथ, टीथ या हम क्या बोलेंगे ट्यूब लाइक, और जो रहेगा ऑर्गन रहेगा फॉर द सकिंग ऑफ प्लांट सैप, मतलब प्लांट का सैप जो रहता है उसको सक करने के लिए इसने इसको इंसर्ट किया। अब होता क्या है, हियर siRNA is developed, okay, already, and that siRNA also come in contact
विद द नेमाटोड, ठीक है, मतलब ये siRNA इसके कांटेक्ट में आएगा, इट गोइंग टुवर्ड देयर बॉडी, ठीक है, मतलब नेमाटोड के बॉडी में ये चला गया। अब देखिए आगे क्या होता है। Here, this siRNA and RISC complex, ठीक है, siRNA and complex form one of moiety, ठीक है, and that's why it unzip the siRNA, ठीक है, siRNA क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है यहाँ पर, ठीक है। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ में कौन आता है यहाँ पर, रिस्क कॉम्प्लेक्स आता है। देन व्हाट इज मीन बाय रिस्क कॉम्प्लेक्स, मैं यहाँ पर मीनिंग लिखता हूँ, ठीक है। रिस्क कॉम्प्लेक्स क्या है, रिस्क कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो आएगा और वो क्या कर देगा, इट अनजिप द आरएनए, ठीक है, ये आरएनए को अनजिप कर देगा, कौन से, siRNA को, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी siRNA have a short segments, okay, and it act on the target mRNA. So this is the mRNA of nematode, मतलब ये नेमाटोड का, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, दैट इज द आरएनए ऑफ नेमाटोड, ये नेमाटोड का आरएनए है, एंड इट कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स ये siRNA कॉम्प्लीमेंट टू mRNA, जो टारगेट mRNA रहेगा उसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट को फॉर्म करेगा, ठीक है, where it cleave the mRNA, and that's why ये क्या करता है, mRNA को अल्टीमेटली it get cleave, and due to cleavage of mRNA it don't go toward the translation process, यहाँ पर जो है ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो पाता, so there have no translation happen and there have no protein happen और no protein develop, और इसी वजह से प्रोटीन और ट्रांसलेशन यहाँ पर नहीं होता, तो प्रोटीन का डेवलपमेंट नहीं हो जाता। अल्टीमेटली दिस नेमाटोड गेट डाई, ठीक है, अल्टीमेटली नेमाटोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाई हो जाएगा, मर जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा उसका, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब ये चीज होता है दैट इज अ जीन साइलेंसिंग, इसे हम क्या कहते हैं, जीन साइलेंसिंग, दैट मींस वी अवॉइड द एक्सप्रेशन ऑफ जीन एंड दैट्स व्हाई ऑर्गेनिज्म गेट डाई, और इसी वजह से ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मर जाता, ठीक है। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ issue then you can ask me, if not then we can go toward the next process. If it clear click on yes। चलिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्या क्या किया हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डेवलप वन ऑफ जीन with the help of RDT, that is recombinant DNA technology, that gene introduced to tobacco plant cell, वहां पर हमने उसको इंट्रोड्यूस किया, that gene get express and develop double stranded RNA and dicer protein, यहाँ पर dicer protein और RNA को उसने डेवलप किया, and this dicer protein act on this double stranded RNA and that's why it get cleave and it develop into the siRNA, और siRNA जो है यहाँ पर बन गया। After that nematode consume the we can say plant sap, ठीक है, वो कंज्यूम कर रहा है, with that plant sap again this siRNA go in the body of nematode, ठीक है, ये nematode के बॉडी में चले जाएंगे। Here one of complex is formed that is known as the RISC complex, ठीक है, which unzip the siRNA, जो क्या करेगा, siRNA को unzip करेगा, siRNA have a small fragment and that's why it act on the mRNA of nematode, और ये mRNA के ऊपर एक्ट हो गया, and the aim of siRNA to cleave mRNA of nematode, और mRNA का जो है सॉरी जो हमारा नेमाटोड है उसका mRNA जो है इसने क्या कर दिया, क्लीव कर दिया, and that's why there have no protein development और no protein expression happen, और वहां पर प्रोटीन एक्सप्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज है दैट इज अ डीएनए सॉरी आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। आरएनए इंटरफेरेंस क्यों कहेंगे, सिंपल सी चीज है, बिकॉज इट इंटरफेयर विथ आरएनए, ठीक है, मतलब आरएनए के साथ इसमें क्या कर जाता है, इंटरफेयर किया है, ठीक। अब अदर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर देख लेते हैं। सो यू कैन सी दिस इज द वन ऑफ ऑर्गेनिज्म
एंड इट नोन एज द लीच, ठीक है। सो इसको कहते हैं लीच। लीच कंटेन वन ऑफ सब्सटेंस एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज द हीरोडिन, ठीक है। हीरोडिन नाम का एक सब्सटेंस जो है वो लीच के बॉडी में रहेगा, ठीक है। अब लीच फाउंड इन द पॉन्ड्स, लीच फाउंड इन द वाटर, ओके। बट रेयरिंग ऑफ लीच मतलब लीच को पालना पोसना बड़ा करना, इट इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ओके। बट वी वांट टू एक्सट्रैक्ट हीरोडिन, ठीक है। बट हमें हीरोडिन की जरूरत पड़ेगी। व्हाई वी वांट हीरोडिन? बिकॉज हीरोडिन इज द एंटी कोएगुलेटर, ठीक है। अब ये कहां पर मिलता है हीरोडिन? हीरोडिन फाउंड इन लीच, ठीक है। ये लीच के अंदर मिलेगा हमें। एंड उसके अंदर क्या है, मतलब लीच जो है वो क्या पोजेस करेगा? दैट इज एंटी कोएगुलेटर, एंटी कोएगुलेटर, ठीक है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी कोएगुलेटर? एंटी कोएगुलेटर का काम क्या रहेगा, ठीक है। इट डू नॉट कोएगुलेट द ब्लड, ठीक है। मतलब ये ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता। अब क्या होता है कि लीच का रेयरिंग करना, ठीक है। लीच को जो है मेडिसिन के लिए यूटिलाइज करना, यूज करना, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड दैट्स व्हाई साइंटिस्ट एक्सट्रैक्ट द जीन फ्रॉम अ लीच, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? वन जीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीच एंड दैट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीरोडिन, ठीक है। सो आई एम राइट हियर हीरोडिन प्रोडक्शन जीन, ठीक है। हीरोडिन प्रोडक्शन जीन को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम द लीच, ठीक है। हीरोडिन प्रोडक्शन जीन उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा एंड देन इट transfer to one of plant with the help of RDT, and that plant name is the Brassica napus, ठीक है। Brassica napus नाम का एक प्लांट रहेगा। You can see the picture here, the picture of Brassica napus, ठीक है। उसके अंदर हम क्या कर देते हैं? इसको इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, then the Brassica napus have it develops some oil seeds, ठीक है। Brassica napus क्या करेगा? ऑयल सीड का डेवलपमेंट करेगा, ओके। एंड बाय दैट ऑयल सीड वी एक्सट्रैक्ट द ऑयल, ठीक है। और वहां से हम ऑयल सीड से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड दैट ऑयल कंटेन हीरोडिन, और वो जो ऑयल क्या है वो उसके पास में क्या रहेगा? हीरोडिन रहेगा, ठीक है। हीरोडिन, उसके पास में हमें क्या मिलता है? हीरोडिन मिलता है। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस जहां पर हमने क्या किया? सिंपल सिंपल चीजें यहाँ पर यूज की। वी जस्ट extract gene from the leech, okay, which is responsible for uridine production, and it introduced to Brassica napus, ठीक है। And Brassica napus में oil seeds आएगा and we extracted oil from the Brassica napus and that oil contain a हीरोडिन, और उस ऑयल के अंदर क्या रहेगा? हीरोडिन रहेगा। So this is the application of agriculture, ठीक है। चलिए, क्लियर है। चलिए, अगेन क्या है? नेक्स्ट इज अ फ्लावर सावर टोमेटो, ठीक है। देन व्हाट इज मीन बाय फ्लावर सावर टोमेटो? सो हियर यू कैन सी द वन ऑफ साइंटिस्ट एंड द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज अ मार्क ग्रेगर, ठीक है। मार्क ग्रेगर नाम का साइंटिस्ट है, इसने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, ठीक है। अब इसने किया क्या, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टोमेटो, ठीक है। ये हमारा टोमेटो है इस तरीके से, okay. So this is the tomato, okay. And tomato have a one of we can say outer covering, ठीक है। टोमेटो के पास एक आउटर कवरिंग रहता है ऑन दिस रेड एरिया, ठीक है। इस रेड एरिया के ऊपर में एक आउटर कवरिंग रहेगा, ओके। एंड इट मेड फ्रॉम द पेक्टिन, ठीक है। और वो किस चीज से बना होता है? पेक्टिन से, ठीक है। ध्यान से सुनना, ओके। चलिए, so this pectin
इज द प्रोटेक्टिंग कवरिंग टू टोमेटो। ठीक है, ये पेक्टिन का कवर क्या रहता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे टोमेटो का। बट देयर हैव वन एंजाइम which develop in a tomato plant and that enzyme is known as PG enzyme। उसको हम क्या कहते हैं, PG enzyme। then what is the long form of PG enzyme? PG enzyme का नाम क्या है यहाँ पर, that is a polygalactoguranate। polygalactoguranate। ठीक है, सो दिस इज द वन ऑफ एंजाइम। ठीक है, जो क्या करता है, इट डिग्रेड पेक्टिन। सो आई एम राइट हियर, इट डिग्रेड पेक्टिन। सो हमें क्या करना है, वी वांट टू रिमूव दिस पीजी एंजाइम फ्रॉम द टोमेटो। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर पीजी एंजाइम को रिमूव करना है। ठीक है, और पीजी एंजाइम अगर रिमूव हो जाता है, देन जो हमारा टोमेटो है, ठीक है, इट 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 लूज देयर एबिलिटी टू बीइंग अ ओल्ड। ठीक है, मतलब वो उसका एबिलिटी लूज कर देगा जल्दी जल्दी ओल्ड होने का। ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ टोमेटो। और उसी वजह से जो टोमेटो का लाइफ है यहाँ पर बढ़ जाए। वी डिस्कस ऑलरेडी अबाउट पोस्ट हार्वेस्टिंग वी कैन से लॉसेस। ठीक है, यहाँ पर हमने पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस के बारे में डिस्कस किया था पहले। दैट मीन्स हाउ बायोटेक्नोलॉजी अवॉइड द पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस। मतलब ये चीज है, देखिए टोमेटो तोड़ने के बाद में मार्केट को हम लेके जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट में लेके जाने से पहले उसको खराब ना होने देना है हमें। समझ में आ रहा है कि नहीं, कंज्यूमर तक वो पूरा का पूरा प्रॉपर जाना चाहिए। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई टू अवॉइड द लॉस ऑफ टोमेटो वी यूज अ फ्लावर सावर टोमेटोज। और हम क्या करेंगे, फ्लावर सावर टोमेटोज का यूज करेंगे, वेयर वी इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ टोमेटो। जो टोमेटो का लाइफ जो है वो इंक्रीज किया जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, वी यूज अ cDNA लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी फॉर दैट। ठीक है, और इसके लिए हम एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं एंड दैट इज नोन एज द cDNA लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी। अब क्या होता है cDNA लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी, देखते हैं। उसके पहले प्रोसेस को देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द पीजी जीन एंड दिस पीजी जीन जनरली is responsible for development of one of a protein। ठीक है, again this is the enzyme that is a polygalactoguranate is the enzyme। ठीक है, एंजाइम क्या है, प्रोटीन ही है। ठीक है, वो क्या करेगा, डिग्रेड करेगा पेक्टिन को। सो पीजी जीन get expressed and develop mRNA। ठीक है, so this is a simple central dogma of life, ये हमें भी पता है। ठीक है, it develop protein। ठीक है, एंड दिस प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल टू डिग्रेड पेक्टिन। ठीक है, ये पेक्टिन को डिग्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज अ वन साइड। अब होता क्या है, वी गेट अ पीजी जीन। ठीक है, हम क्या करेंगे, वी यूज अ पीजी जीन। ठीक है, एंड वी डेवलप mRNA फ्रॉम पीजी जीन इन लेबोरेटरी। mRNA को जो है वो डेवलप करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द पीजी जीन। बाय दिस mRNA वी डेवलप द cDNA। ठीक है, और उस mRNA से हम क्या करेंगे, cDNA को डेवलप करेंगे। ठीक है, देन व्हाट इज द मीन बाय cDNA गाइस। अब यहाँ पर cDNA का मीनिंग क्या होता है, सो cDNA इज द कॉम्प्लीमेंटरी वी कैन से DNA। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री DNA। लिखता हूं यहाँ, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए रहेगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का मतलब क्या होता है, मतलब ये एक तरह का डीएनए का स्ट्रैंड रहेगा एंड इट गेट कॉम्प्लीमेंट टू एमआरएनए। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, एमआरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेशन करेगा। कैसे करता है, क्या करता है, देखिए। सो हियर दिस cDNA अप्लाई टू द एमआरएनए। ठीक है, यहाँ पर ये cDNA क्या करता है, अप्लाई टू द एमआरएनए एंड दैट्स व्हाई द mRNA get damage और mRNA do not express the protein। और उसके वजह से यहाँ पर प्रोटीन का एक्सप्रेशन नहीं होता है। so, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नो एक्सप्रेशन। ठीक है, प्रोटीन का एक्सप्रेशन नहीं होता। इफ प्रोटीन इज नॉट डेवलप देन एंजाइम इज नॉट डेवलप। ठीक है,
एंड इट नॉट एक्ट ऑन द पेक्टिन, और वो पेक्टिन के ऊपर नहीं एक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ चीजें लिख लेते हैं। सो ट्रांसलेशन नॉट हैपन विद द अप्लाइंग cDNA। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसलेशन जो है वो नॉट हैपन, नहीं होता है। ठीक है, cDNA के एप्लीकेशन के वजह से। अब देखिए cDNA अप्लाई कैसे होता है, वो एक क्वेश्चन हमारा छूट गया। फॉर एग्जांपल दिस इज द mRNA। ठीक है, सपोज दिस इज द mRNA ऑफ पीजी जीन। ठीक है, ये सॉरी पीजी का mRNA है। तो क्या, ठीक है, सो cDNA एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, cDNA इस तरीके से एज अ कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर एक्ट होगा। ठीक है, एंड दिस सिंगल स्ट्रैंड mRNA गोइंग टू डेवलप इन अ डबल स्ट्रैंड cDNA, और ये cDNA का डबल स्ट्रैंड यहाँ पर बन जाता है। एंड यू ऑलरेडी नो दिस डबल स्ट्रैंड इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन अ प्रोटीन, और ट्रांसलेशन नॉट हैपन, यहाँ पर ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। सो प्रोटीन गेट नॉट डेवलप, और प्रोटीन का डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होगा उसके वजह से। समझ में आ रहा है, प्रोटीन गेट नॉट डेवलप, समझ में आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द cDNA टेक्नोलॉजी, और इस तरीके से हम cDNA टेक्नोलॉजी का यूज करके वी कैन डेवलप द फ्लावर सावर टोमेटो। फ्लावर सावर टोमेटो का डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाता है। अगेन एक चीज ध्यान में रखना, वी डेवलप द गोल्डन राइस। ओके, सो गोल्डन राइस का मतलब क्या होता है, अ राइस विच कंटेन विटामिन ए। ठीक है, गोल्डन राइस के अंदर क्या विटामिन ए इनरिच रहेंगे। सिंपल सा चीज है, हम क्या करेंगे, वी एक्सट्रैक्टेड द जीन which who responsible for development of vitamin A, and we inserted it into the rice plant। ठीक है, उसको राइस प्लांट, राइस क्रॉप में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इज दिस फ्लावर सावर टोमेटो क्लियर टू ऑल? क्लिक ऑन यस। ओके, फ्लावर सावर टोमेटो में किसी को इश्यू है, प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी if something is not understood by you। ठीक है, चलिए, सो आई एम लॉन्चिंग अ पोल फॉर एनपीएस। ठीक है, एनपीएस जब तक चलता है तब तक हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देते हैं फॉर द फ्लावर सावर टोमेटोज। ठीक है, एनपीएस का आंसर भी दो मुझे एंड आई कैन रिवाइज इट। ठीक है, सो पहला चीज क्या है, here is the pectin wall। Okay, and pectin is important for protection of tomato। Okay, and here is the one of enzyme that is known as the PG enzyme। Okay, and which is responsible to degrade the pectin। Okay, अब होता क्या है, we want to remove this enzyme। ठीक है, हमें क्या करना है, इस एंजाइम को रिमूव करना है, and that's why the life of टोमेटो गेट इंक्रीजेस, और उसके बाद टोमेटो का लाइफ इंक्रीज हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, वी गेट अ पीजी जीन। ठीक है, वी कन्वर्ट इट इनटू द mRNA और ट्रांसक्रिप्ट इनटू mRNA। फ्रॉम mRNA वी डेवलप cDNA, एंड दिस cDNA अप्लाई ऑन द mRNA ऑफ टोमेटो प्लांट। मतलब जो टोमेटो प्लांट का mRNA रहेगा, ठीक है, जो पीजी जीन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, उसके ऊपर हम इसको अप्लाई करवा देंगे, एंड दैट्स व्हाई ट्रांसलेशन गेट स्टॉप। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होगा, दैट्स व्हाई नो एक्सप्रेशन हैपन, नो प्रोटीन डेवलप, पीजी जीन का प्रोटीन यहाँ पर डेवलप नहीं होता। ठीक है, चलिए, इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, किसी को डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आया हो, यू कैन आस्क मी। If it clear, then you can leave for a day।